Hello friends, in this video we'll learn exercise 3.7 from the chapter 3. This is as important as the other exercise. This is an optional exercise. So question 1, the ages of the two friends Ani and Biju differ by the 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani, and Biju, the another friend, is twice as old as his sister Kathy. Biju is twice old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. So find the ages of Ani and Biju. Okay. So in this case, there are the two friends Ani and Biju, but we don't know who is the who is the bigger and who is the smaller than each other. So we assume that X be the age of the Ani and Biju's age be the Y. So we can differentiate the ages of these two by x minus y is equals to 3, or in the case 2 you can see that y minus x is equals to 3. As I told earlier that we don't know who is the bigger than the other, so x minus y भी हो सकता है और y माइनस यानी अनि भी बड़ा हो सकता है या बीजू भी बड़ा हो सकता है, तो उन दोनों की एज का डिफरेंस 3 है यहाँ पर. This is the equation 1, and the second equation is Ani's by this hint you can solve the another equation. The Ani's father Dharam is twice old as Ani, and Biju is twice old as his sister Kathy. The second condition for the case 1 is Ani's father Dharam. That means it's a 2x minus y by 2 is equals to 30. 2x, here 2x is what? The Dharam's age. Dharam's age is the twice as Biju, यानी कि अगर बीजू की एज x है तो ऑब्वियसली उसके फादर की एज धर्म की एज कितनी हो गई उससे ट्वाइस, यानी कि 2x ईयर्स. और y बाई 2 ये कहाँ से आया? तो इट्स अ बीजू सिस्टर, क्योंकि बीजू क्या है? कैथी से ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, ये है हमारा. तो बीजू की एज है वो सिस्टर से डबल है, तो कैथी की एज कितनी हुई? उससे आधी. ठीक है, देयरफॉर इट्स अ y बाई 2. अगर बीजू की एज y ईयर्स है तो कैथी की एज कितनी होगी? उससे आधी, तो देयरफॉर y बाई 2. सो एंड द लास्ट जो लाइन थी, द एजेस ऑफ द कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, उस पे से हमारा ये सेकेंड इक्वेशन बना है 2x माइनस वाई बाई 2. अब यहाँ पे 2x माइनस वाई बाई 2 क्यों लिया है? ऑब्वियसली बिकॉज धर्म और कैथी के बीच में कौन बड़ा होगा? धर्म, जो उसके पापा हैं. ठीक है, अनि के. So 2x minus the age of Kathy, y by 2 is equals to 30. This is your equation 2 for case 1. Case 2 में ये दो इक्वेशन बने हैं कि y minus x is equals to 3 and second equation is as it is. Second equation में y by 2 है, तो as you can see that y by 2, तो 2 हम LCM ले लेंगे, so your equation becomes 4x minus y is equals to 60. By these two equations, here I take substitution method, or you can say the elimination. Here I take elimination method. You can use any of the three methods, the substitution, elimination or cross multiplication method, and solve your x and y. Question 2. One says, give me 100 friend and I shall then become twice old as rich as you. The other says, if you give me 10 I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital. ठीक है, तो इसमें दो फ्रेंड्स हैं, सपोज़ कि एक है x और एक है y. पहले ने बोला कि गिव मी 100, अगर y उसको x ने बोला कि गिव मी 100 टू द y फ्रेंड, तो y के पास कितना कम हो गया? उसके पास से 100 कम हो गए, दैट फॉर y माइनस 100. और एट द सेम टाइम x के पास कितने बढ़ गए? अगर उसने पैसे दिए उसको तो उसके पास कितने हो गए? x प्लस 100. ठीक है, सो योर इक्वेशन बिकम्स x प्लस 100 इज इक्वल्स टू y माइनस 100. और क्या है? आगे पढ़ो कि आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. आई शेल इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वाई माइनस 100. जिस फ्रेंड ने दिए उसको ये बोल रहा है कि आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. वर्ड प्रॉब्लम्स में लिखते जाओ और इक्वेशन बनता जाता है. आप सोचने जाओगे तो वहाँ पे आप स्टक हो जाओगे, इसलिए लिखते जाओ. सेकेंड इक्वेशन है कि अब अदर रिप्लाइज, क्या लिखा है आगे? अदर रिप्लाइज, यानी अदर कौन? x की बात हो गई. अब y की बात है कि इफ़ यू गिव मी 10, अब y के पास हो गए, बढ़ गए पैसे 10, तो सेम टाइम पे x के पास क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो x माइनस 10. x बंदे ने 10 रुपये दिए इसको, तो उसके पास 10 कम हो गए और इसके पास बढ़ गए, सो x माइनस 10, और यहाँ पे हो गया y प्लस 10.
तब उसने बोला आई शैल बी इज इक्वल टू आई शैल बी 6, ये वाई बोल रहा है, ठीक है ना। सो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो ये 6 जो है इंटू 6 वो किसके पास जाएगा, x के पास। 6 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 10. So this is your second equation. Therefore, equation finally becomes 6x minus y is equals to 70. And first equation is x minus 2y is equals to minus 300. Now we again have the two equations to solve the two variables by any method. Okay, so we can solve it and we get the x and y in the years. Okay, because हमने x और y जो है years का assume किया है. Go for the third question. It is very important and very easy. A train covered a certain distance at a uniform speed. एक uniform speed से चल रही है. If the train would have been 10 km/h faster, this is nothing but the speed. Okay, unit से आपको पता चलना चाहिए कि ये speed है, distance है कि time है. People get confused between these three things. So by the unit, by the seeing the unit, you can identify what is that. So if the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less. It would have taken 2 hours less. So this is time. Okay, 2 hours less than the scheduled time. So and if the train were slower by, again speed कम हो रही है, so it would have taken 3 hours more naturally. ठीक है, so then the scheduled time. So find the distance covered by the train. यहाँ पे आप कभी भी एक लाइव एग्जांपल भी लो कि अगर हम स्पीड कम करते हैं हमारी गाड़ी की तो हमें पहुँचने में ज़्यादा देर लगती है. सो इट वुड हैव टेकन मोर टाइम्स. एंड इफ़ वी लेसर अवर स्लोअर अवर स्पीड, अगर हम टाइम कम करते हैं तो ज़्यादा लगता है, स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है घर पहुँचने में. ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा करते हैं देन इट वुड हैव टेकन लेस टाइम्स दैन द शेड्यूल टाइम. ठीक है, टाइम कम लगता है नेचुरली. तो वही एग्जाम्पल है यहाँ पे. तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले स्पीड जो है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. x इज इक्वल्स टू डी बाई टी यहाँ पे लिया है. आप d की जगह y या ऐसा कुछ भी ले सकते हो. सो d इज इक्वल्स टू x इंटू टी. यूजिंग द इंफॉर्मेशन, पूरा इक्वेशन को किस में कन्वर्ट किया है इन लोग ने, डिस्टेंस में, सॉरी स्पीड में, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. एज यू कैन सी दैट जो x प्लस 10 है वो कहाँ से आया, बिकॉज वी अज्यूम दैट्स x km/h विद द स्पीड. और उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है कि 10 km/h वुड बी फास्टर. ठीक है, 10 km वुड बी फास्टर है तो कितना हो जाएगा x प्लस 10. एंड जैसे ही टाइम स्पीड ज़्यादा लगती है तो टाइम कम हो जाता है. देयरफॉर वी हैव d अपॉन t माइनस 2. एंड यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. देन फाइनली यू हैव माइनस 2x प्लस 10t इज इक्वल्स टू 20. यहाँ पे अपना x और y लेके भी कर सकते हो. यहाँ पे मैंने t लिया है. d को आप वापस x इंटू टी में जो कन्वर्ट किया वहाँ पे आप y भी ले सकते हो, बट टाइम इज इक्वल्स टू t वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा समझने में, इसलिए t लिया है. एंड सेकेंड इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप कि स्पीड कम हुई, x माइनस 10 क्या है, x स्पीड है, तो x माइनस 10 स्पीड कम हुई तो एट द सेम टाइम टाइम क्या हो गया, बढ़ गया. देयरफॉर t प्लस 3 लिखा है. Therefore if you solving this equation, okay, d में लास्ट में इक्वेशन जो है xt माइनस 10t प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू d. तो d इज इक्वल्स टू क्या ले लिया है लास्ट में, जब हमने ऊपर भी देखा था d इज इक्वल्स टू xt. ठीक है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो वो xt दोनों तरफ से कट हो जाएगा. और देयरफॉर बाय यूजिंग द इक्वेशन 1 जो लिखा है वो वही है कि d इज इक्वल्स टू xt. वी ऑब्टेन फाइनली इक्वेशन 3 3x माइनस 10t इज इक्वल्स टू 30. बस ये आपके दोनों फाइनल इक्वेशंस है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3. यू कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय एनी ऑफ योर मेथड एंड यू गेट योर x एंड y. क्वेश्चन 4, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो एंड इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 row less. If the 3 students are less in a row there would be 2 rows more. So find the number of students in the class. जो भी फाइंड करना है उसको ही आप अज्यूम करोगे. ये एक पॉइंट होता है. दूसरा पॉइंट होता है किस में प्लस और माइनस की वैल्यूज़ दी हुई है आपको, वो भी एक हिंट होता है आप उसको अज्यूम करने के लिए. ठीक है, तो वो एक यहाँ पे हिंट आपको दिख रही है कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो. सेकेंड पॉइंट है कि देयर वुड बी 1 row लेस. ठीक है, तो रो और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर रो वो हम लोग सपोज कर सकते हैं यहाँ पे.
So as you can see that, let the number of rows be the x and number of students in the row be the y. So total number of students क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी रोज़ हैं और एक रो में कितने बच्चे खड़े हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई. अब इसमें आपको प्लस और माइनस करना है एज पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन. 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, हमने क्या लिया है उसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो विद अ वाई. ठीक है, तो 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा यानी कि वाई में 3 ज़्यादा हुए. एंड देयर वुड बी 1 रो लेस, यानी कि जितनी रो है नंबर ऑफ रोज विद द एक्स, सो एक्स माइनस 1. एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ ये सब करने में, तो इज इक्वल टू एक्स वाई. ये मत भूलना बच्चों, आप लोग y+3 कर दोगे, x-1 भी कर दोगे, लेकिन इधर जो लिखोगे वो आप भूल जाओगे. दिस इज़ नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, पर्टिकुलर रो में खड़े हुए बच्चे और कितनी रो है वो क्या देता है हमको, मल्टीप्लाई करो तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए वो x और y. तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया. सेकेंड कंडीशन में भी यही है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे पर्टिकुलर रो में से, उसमें से 3 कम हैं और नंबर ऑफ रोज़ 2 ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए जो आपका सेकेंड कंडीशन का इक्वेशन है वो x+2 इंटू y-3 इज इक्वल टू एक्स वाई, बिकॉज इट्स अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगेन वी हैव दिस 2 इक्वेशंस टू सॉल्व. इन दिस केस वी कैन सी दैट 3x है दोनों में, तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो. यू जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन एंड यू गेट योर x एंड y. फिफ्थ क्वेश्चन अलग है लेकिन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है. इन ट्राइंगल ABC, एंगल C इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B. सो फाइंड द 3 एंगल्स. 3 एंगल्स का कोई ट्राइंगल में हमें सम पता है, उसके ऊपर से ले लेंगे हम, बट थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं उससे पहले. सो एंगल C, गिवन दैट एंगल C इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B एंड इज नथिंग बट द 2 टाइम्स ऑफ होल ब्रैकेट एंगल A इज इक्वल्स प्लस एंगल B. तो 3 टाइम्स जो एंगल B लिया हमने वो यहाँ पे है, तो अब 3 टाइम्स जो एंगल B लिया है उसे इज इक्वल, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके जैसे हम x और y सॉल्व करते हैं वैसे ही 2 टाइम्स ऑफ एंगल B गोज़ LHS साइड, इट बिकम्स ओनली एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A. दिस इज़ योर इक्वेशन 1. आप इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो. ठीक है, डायरेक्ट एंगल B की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दोगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, और यहाँ पे जैसे इक्वेशन 1 बनाया है वैसे करोगे तो एलिमिनेशन से हो जाएगा. सेकेंड कंडीशन हमें खुद बनानी है कि दैट मीन्स वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री हुआ. और फिर उसके बाद आपने ऊपर की वैल्यू रख दी है, एंगल C इज इक्वल्स टू जो दिया था 3 टाइम्स ऑफ एंगल B मैंने रखा है, और उसके बाद 3 + 1 इज़ 4 टाइम्स ऑफ एंगल B. दिस इज़ योर इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 and 2 you can solve by any method, so you get your angle A and angle B and angle C respectively. क्वेश्चन 6 ग्राफ पे है, वो भी इजी है. ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 5x minus y is equals to 5 and 3x minus y is equals to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. जब भी हम इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तब वो कोई एक्सिस पे भी पर्टिकुलर एक अपना इंटरसेक्ट पॉइंट जो होता है वहाँ पे होता है, उन लोगों का इंटरसेक्ट करती है एक्सिस पे भी. तो ये 2 लाइन से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे विथ द वाई एक्सिस से एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, उसको आपको शेड करना है, और शेड के बाद जो उसके वर्टाइसिस हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं यहाँ पर. सो 2 इक्वेशंस हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. एलिमिनेशन मेथड से हम अपना पॉइंट ला देते हैं कि एक्स और वाई कहाँ पे ये एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों टेबल में 1 0 1 0 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करने वाला है. ओके, तो वी कैन सी दिस ग्राफ 1 0 पॉइंट पे आप देख रहे हो कि अपना ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और यू कैन सी दैट ऑन द वाई एक्सिस पे भी इससे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग को दिख रहे हैं 0 -3, और पॉइंट ABC ट्राइंगल मैंने नाम दिया है 0 -3, और पॉइंट C है वाई एक्सिस पे है, ऑब्वियसली वहाँ पे 0 होगा, एक्स एक्सिस 0 होगा, तो 0 -5. So this is our 3 vertices of the required triangle ABC. ठीक है. Now move to the question 7. Solve the following pair of linear equations by any of method. By any of method. Okay, so this is as simple as that. You can see solve by any of method.
And last question we can see. Yes, ABCD is a cyclic quadrilateral. Finds the angle of the cyclic quadrilateral. Okay, this is a cyclic quadrilateral and the angles are you have given in the form of the x and y. So these are the angles only. We find the values of x and y. So we know that the sum of the measures of the opposite angles in a cyclic quadrilateral is 180 degree. That means angle B plus angle D है वो 180 degree होगा और angle C plus angle A is also 180 degree. Put the values of angle A and angle C or B and angle D as given in the terms of x and y. You got your two equations. ठीक है, you got your two equations to solve for x and y by any method. Once you solve your x and y, you got the values of x and y may be negative. Okay, so don't be panic. This is the just the value, not the angles. By putting this x and y again in the values of angle A, for example, angle A is given to you as a 4y plus 20 and y is equals to 25. So just put y by 25 and you got the value of angle A as 120 degree. So all these are the degrees in the terms of angle A, B, C and D. So thank you. This is all about the exercise 3.2.